Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss the last topic of our unit 13, that is sex linkage in humans. So let's move on. जी तो dear students, now sex linkage in humans. So how the sex is linked in the humans? Dear students, humans have got many traits which are present on X chromosome as well as few traits which are present on the Y chromosome. So humans have many traits present on X chromosome. And their counterparts are not located on the Y chromosome. Having no counterpart of their genes on Y chromosome. These are called X-linked traits. Clear? For example, hemophilia, for example, color blindness, for example, hypophosphatemic rickets, hypophosphatemic rickets. So these are the traits which are present on X chromosome of humans. इसी तरह से few traits are also present on Y chromosome and their counterparts of genes are not present on X chromosome. These are called Y-linked traits. Clear? For example, the SRY gene. SRY gene, that is the sex determining regions of Y chromosome.
Clear? SRY gene. So this gene is SRY gene present at tip of short arm of Y chromosome. And is responsible for maleness. So this is the most important gene, SRY gene, located on the tip of short arm of the Y chromosome. It is responsible for maleness. जितने भी मेल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसी जीन की मरहून मिन्नत हैं. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक्स और वाई लिंक्ड ये किस तरह से इनहेरिट होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, एक्स लिंक्ड, वो दो तरह की हैं. एक्स लिंक्ड रिसेसिव and X-linked dominant. X-linked recessive like hemophilia, and color blindness. While the dominant, like for example, the hypophosphatemic rickets. So these are the examples of X-linked recessive and dominant traits which are present in the humans, while the X-linked, while the Y-linked trait, it is the best example is the SRY gene. Now, how they are inherited, it is much more important. Sorry. Now, first of all, the X-linked recessive traits inheritance. अब डियर स्टूडेंट्स, इंसानों के अंदर जो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है, ये हम एक्सपेरिमेंटली तो ह्यूमंस के ऊपर नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमंस आर वेरी मच प्रेशियस ऑर्गेनिजम्स. तो फिर हम इनकी पेडिग्रीज के ज़रिए, नोट कर लीजिए, वी कैन स्टडी द सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस थ्रू द पेडिग्रीज. इनकी इनहेरिटेंस हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं? पेडिग्रीज के जरिए. पेडिग्री कहते हैं शजरा नस्ब के जरिए हम इनको स्टडी कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स इनहेरिटेंस. तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स इनहेरिटेंस के हवाले से देखिएगा, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स एंड लेस इन फीमेल्स. ये फीमेल्स में कम होते हैं, मेल्स में ज़्यादा होते हैं. रीज़न, what is the reason? So we are talking about the X-linked recessive. As females have 2 X chromosomes and males have only 1 X and 1 Y, तो मेल्स में चूंकि हम X linked की बात कर रहे हैं और रिसेसिव की बात कर रहे हैं, रिसेसिव आमतौर पर हम उनको जो स्मॉल लेटर्स से शो करते हैं, तो फीमेल्स में ये इसलिए कम है क्योंकि फीमेल्स जब तक उस ट्रेट के लिए होमोजाइगस ना हो जाए तब तक वो रिसेसिव ट्रेट फीमेल्स के अंदर अपीयर नहीं होगा, जबकि मेल्स के अंदर चूंकि उनके पास है ही एक एक्स पे भी आ गया, सो मेल जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं मेल में एक भी आ गया, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड. सो दैट इज़ द रीज़न द मेल्स they are more affected
they carry more X-linked recessive traits as compared to the females. Clear? अगर हम बात करें यहाँ पर इनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की, so in an affected male, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से इफेक्टेड होगा मेल, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल हिज डॉटर्स, इसके जितने भी डॉटर्स होंगी विल बी कैरियर, वो इसके जीन को कैरी करेंगी, लेकिन उनके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स आमतौर पर मैनिफेस्ट नहीं होते, क्योंकि ये कैरी तो कर लेगी लेकिन चूंकि फादर से एक्स आएगा, मदर से भी एक्स आएगा, मदर अगर नॉर्मल हो, सिर्फ फादर इफेक्टेड हो, तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगी। हेट्रोजाइगस का मतलब होगा कि वो कैरी करेगी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो चूंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो फीमेल्स के अंदर जब तक वो रिसेसिव ना हो जाए, होमोजाइगस रिसेसिव ना हो जाए, तब तक इनके अंदर अपीयर नहीं होने वाला। जबकि नन ऑफ हिज सन्स, इसके जितने भी बेटे होंगे विल बी इफेक्टेड, नन ऑफ हिज सन्स विल बी इफेक्टेड, कोई भी बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से इफेक्ट नहीं होगा, will be affected. क्लियर? उसकी रीजन, क्योंकि मेल होने के लिए जरूरी है कि फादर से वाई आए, वो गैमीट जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, और मदर से एक्स आए, तो तभी ये हो सकता है एक्स वाई। तो वाई कहाँ से इनहेरिट कर रहा है? मेल से। तो मेल जो सा रिसेसिव ट्रेट कहाँ पर मौजूद है? एक्स के ऊपर। ये एक्स इसके पास कहाँ से आएगा? फ्रॉम द मदर। तो मदर तो नॉर्मल है। इसी तरह से यहाँ से फादर लेट्स सपोज कि वो कोई भी रिसेसिव ट्रेट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द हीमोफीलिया, वो यहाँ पर इसके पास आ गया, लेकिन मदर से तो नॉर्मल आया, मदर से नॉर्मल, फादर से रिसेसिव यानी इफेक्टेड। सो इसमें ये इफेक्ट नहीं होगी, शी विल बिकम द कैरियर, क्योंकि हेट्रोजाइगस हो गई है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट ही अपीयर होता है, और डोमिनेंट इसमें नॉर्मल जीन है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर अगर ये मदर से तो कैपिटल एच आया जो कि डोमिनेंट था, नॉर्मल था, तो फादर से तो हमेशा वाई आएगा। इसलिए इस शख्स के कोई भी बेटा अगली नस्ल में किसी भी तरह के कोई भी बेटा जो है वो इस डिसऑर्डर से इफेक्ट या इस ट्रेट से इफेक्ट नहीं होगा, जबकि इसकी तमाम बेटियां, ऑल ऑफ हिज डॉटर्स, दे विल बिकम द कैरियर। अब अगर ये डॉटर, इफ दिस डॉटर शी मैरीज अ नॉर्मल पर्सन, इफ दिस डॉटर मैरी a normal person, a normal male, जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कैरियर डॉटर है अगर ये किसी नॉर्मल शख्स से शादी करती है, सो व्हाट विल हैपन? नाउ देयर आर द चांसेस दैट हिज सन्स कुड बी इफेक्टेड। अब इसके जो सन्स हैं वो इफेक्ट होंगे इस कैरियर डॉटर के। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके जो डॉटर्स हैं वो चांस पे हैं, मोस्ट ऑफ देम दे विल बी कैरियर। द डॉटर्स दे वुड बी कैरियर अगेन। तो डॉटर्स इसकी कैरियर हो जाएंगी, लेकिन जो इस कैरियर डॉटर के जो सन्स होंगे वो इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनमें चांस है कि वो उसमें 50% जो है वो इफेक्ट हो जाए, 50% जो है वो नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इस अगर इस शख्स को देखें इफेक्टेड मेल को, तो इसका ग्रैंड सन, उसके अंदर तो वो ट्रेट एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली उसके सन में ये इफेक्ट नहीं होगा। तो ये किस तरह से फिर इनहेरिट हुआ? मतलब कि इस इफेक्टेड मेल से इसकी डॉटर में गया, और डॉटर से फिर कहाँ गया? उस डॉटर के सन में, मतलब कि ही इज द ग्रैंड सन, नवासे। तो इस शख्स के नवासे में ये जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो सकता है, इसके अपने बेटों में या इसके पोतों में ये ट्रेट इफेक्ट नहीं हो सकता। इस तरह से जो
पैटर्न अगर इनहेरिट होकर आए तो इसे कहते हैं जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? सो होपफुली ये इसका जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर मेल्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, फीमेल्स कम इफेक्ट होती हैं, जबकि यहां पर इन केस ऑफ द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट द फीमेल्स आर मोर इफेक्टेड while the males are less affected। मेल्स कम इफेक्ट होते हैं इसमें, फीमेल्स का चांस ज्यादा है। उसकी क्या रीजन? सो लेट अस हैव लुक ऑन दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अगर तो हो इफेक्टेड फीमेल हो, इन केस ऑफ इफेक्टेड फीमेल, अगर एक कपल है, ठीक है, कि हस्बैंड और वाइफ हैं और जो फीमेल है वो इफेक्टेड है इस एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट से, तो फिर क्या चांस है? द चांस इज दैट 50% इस इफेक्टेड फीमेल के सन्स इफेक्ट होंगे एंड 50% चांसेस ऑफ हर डॉटर्स इफेक्टेड। एक्स लिंक डोमिनेंट में याद रखिएगा, अगर तो फीमेल इफेक्ट जो इफेक्टेड हो वो इस ट्रेड से, एक्स लिंक डोमिनेंट से, तो 50% चांस है उसके बेटे इफेक्ट होंगे, 50% चांस है उसकी बेटियां इफेक्ट होंगी। लेकिन अगर हो इफेक्टेड मेल, इफ द इसी एक्स लिंक डोमिनेंट में अगर हो इफेक्टेड मेल, तो उसमें फिर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मुख्तलिफ हो जाएगा। किस तरह से? अब इस शख्स के, इस इफेक्टेड मेल के, अगर मेल इफेक्टेड है और इसकी जो वाइफ है वो नॉर्मल है, तो उस सूरत में नन ऑफ हिज सन्स विल बी इफेक्टेड। कोई भी बेटा इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्या रीजन है? क्योंकि फादर की तरफ से हमेशा वाई आएगा और हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो इसमें अगर आएगा तो चूंकि इसकी जो वाइफ है वो नॉर्मल है, तो ये बेटा जो है वो नॉर्मल एक्स इनहेरिट करेगा, फादर की तरफ से वाई इनहेरिट किया। सो ये सब के सब बेटे इस इफेक्टेड मेल के जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट से सफ़र कर रहा था, इसके तमाम बेटे किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन all of his daughters will be affected, वो इफेक्ट होंगे इससे। all of his daughters will be affected। क्लियर? वो किस तरह से? क्योंकि फादर के पास इसका डोमिनेंट जीन है, क्योंकि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। बेटी कैसे होती है? फादर की तरफ से भी एक्स आता है, मदर की तरफ से भी एक्स आता है। तो फादर की तरफ से एक भी डोमिनेंट आ गया, चूंकि बेटी कैसी होती है, एक्स होती है। फादर की तरफ से लेट्स सपोज वो डोमिनेंट आ गया, लेट्स सपोज कि इट इज़ कैपिटल डी, लाइक इन केस ऑफ द हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। फादर की तरफ से एक भी आ गया और मदर वो नॉर्मल है, तो डियर स्टूडेंट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन सा जो एलील एक्सप्रेस होता है? हमेशा डोमिनेंट। तो ये वाला कहाँ से आता है? ये जो डोमिनेंट एलील कहाँ से है? इस फादर से है। तो ये इफेक्ट हो जाएगी जितनी भी बेटियां होंगी, क्योंकि फादर से आना ही डोमिनेंट एलील है। मदर बेशक नॉर्मल हो तो वो इफेक्ट होगी, जबकि मदर इसकी नॉर्मल, इस शख्स की जो वाइफ है वो नॉर्मल है, और फादर से उसने क्या इनहेरिट किया? वाई के ऊपर इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। तो ये जितने भी बेटे होंगे इस शख्स के, वो सब के सब नॉर्मल होंगे, वो इस ट्रेट से इफेक्टेड नहीं होंगे।
और जहां तक बात रह गई वाई लिंक्ड की, वाई लिंक्ड ट्रेड्स इनहेरिटेंस, ये कैसे इनहेरिट होते हैं? तो ये बहुत सादा सी बात है, वेरी सिंपल। वाई हमेशा नॉर्मली किसके अंदर आता है? इट इज़ ओनली इन द मेल्स। नॉर्मली बच्चियां फादर से नॉर्मली वाई जो है वो इनहेरिट नहीं करती हैं, हमेशा मेल ही जो किया करते हैं। सो ऑल ऑफ हिज सन्स वाई लिंक्ड ट्रेट्स, किसी भी तरह का वाई लिंक्ड ट्रेट होगा, ऑल ऑफ हिज सन्स, अगर कोई मेल अफेक्टेड है, किसी भी तरह का कोई ट्रेट है, तो ऑल ऑफ हिज सन्स विल इनहेरिट वाई लिंक्ड trait, and no one of his daughters will inherit Y-linked trait। उसकी रीज़न, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के अंदर फादर की तरफ से सिर्फ एक्स जाता है, वाई नहीं जाता। तो हम किसकी बात करें? वाई लिंक्ड की। वाई हमेशा बच्चों में जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि SRY जीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल SRY जीन हमेशा मेल्स में जाता है। और वाई चूंकि छोटा क्रोमोसोम है, इसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रेट भी कम होता है। एक्स के ऊपर एक्स कंपैरेटिवली बड़ा क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस के अंदर, उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रेट्स भी ज़्यादा हुआ करता है। क्लियर? Now, dear students, the examples of Y-linked traits. So, here are a few examples. Number one is the hypertrichosis, that is the growth of hairs on the margins of pinna। ये कान के बाहर यहाँ पर इस मार्जिन्स के ऊपर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की मेल्स के अंदर सिर्फ, ठीक है। सो दैट इज आई कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस, और इसे हेयरी पिना भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेयरी पिना। क्लियर? एंड अनदर एग्जाम्पल इज प्रोक्यूपाइन मैन। प्रोक्यूपाइन आपको पता है, उससे एक एनिमल है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। उसकी पूरे बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, लाइक दिस। उसके ऊपर बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांटे ही होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्यूपाइन। तो ये एक ऐसी वायलेंट ट्रेट है जो कि इस बेसिकली डिजीज कंडीशन है, जिसमें स्किन के ऊपर जो हेयर्स है वो बिल्कुल ऐसे इरेक्ट होंगे। नॉर्मली तो हमारे ऐसे स्किन के साथ अटैच होते हैं। सो दिस आर द स्ट्रेट हेयर्स, जैसे कि इसके वो स्पाइन्स होते हैं प्रोक्यूपाइन के। सो स्ट्रेट हेयर्स ऑन स्किन, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्यूपाइन मैन, एंड दिस इज ऑल्सो ओनली वायलेंट ट्रेट और ओनली फाउंड इन, चूँकि वायलेंट ट्रेट्स जो है सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाए जाएंगे। And number three, another example is there, and that is testis determining factor, also known as TDF. Another example of violent trait is the minor histocompatibility
complex factor. It is denoted by HY. Clear? और it is the histocompatibility complex भी कहते हैं ये बेसिकली, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीन, माइनर है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन। ये दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वैसे इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स जाना जाता है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है विच इज़ रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। क्लियर? एंड वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। नंबर 5 इज वेबिंग ऑफ टोज। वेबिंग ऑफ टोज सिर्फ मेल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो टोज खास तौर पर, ठीक है, और वो फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि ये इट्स अ बिग टो और पॉसिबल है कि वो साथ वाले जो दो टोज हैं वो ऐसे फ्यूज्ड हों। सो इस तरह से दिस इज नोन एज, हैं 5 लेकिन ये आपस में यहाँ से फ्यूज्ड है। दिस वन, दिस टू आर द फ्यूज्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज वेबिंग ऑफ द टोज। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स और इसके अलावा जो नॉर्मल जीन इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम द मेल्स फादर टू द सन्स, दैट इज SRY जीन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ द वाई, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। So these are few characteristics which are present, these are few traits which are present on the Y chromosome. Dear students, जो ट्रेड्स Y क्रोमोसोम के ऊपर है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उनका कोई उनको जो कंट्रोल करने वाला जीन से जो है वो सिंगल है, वो सिर्फ Y के ऊपर है, वो X के ऊपर नहीं है। इस वजह से हमने कहा था कि जो मेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज हेमीजाइगस। मेल्स आर हेमीजाइगस because they have single gene for Y-linked trait on Y chromosome and no partner, no counter gene on X chromosome। तो इस वजह से जो मेल्स होते हैं दे आर हेमीजाइगस फॉर द Y-linked traits। जब फिर Y-linked traits को एक और नाम भी जो है वो दिया जाता है, दैट इज द होलेंड्रिक traits। Holandic traits which are called as the Y-linked traits, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनको होलैंड्रिक इसलिए कहा जाता है, ये जो Y-linked traits हैं वो सिर्फ फादर से सन में पास कर सकते हैं। दे कैन ओनली पास फ्रॉम फादर टू ऑल द सन्स, all sons. Normally none of his daughters are carrying these traits. तो इस वजह से इसको होलेंड्रिक ट्रेट्स का नाम भी दिया जाता है, वायलिंग ट्रेट्स को। और ऐसे यानी इस एतबार से मेल्स हेमीजाइगस हैं। हेमीजाइगस मतलब कि उनका जो वाई के ऊपर है, जो किसी एलील का जो किसी भी ट्रेट का जो एलील है उसका काउंटर पार्ट वाई के ऊपर नहीं है उसका, ठीक है। तो इस वजह से उस जीन को एक सिंगल जीन होने की वजह से वाई क्रोमोसोम पे हम उनको हेमीजाइगस कहते हैं मेल्स को। जबकि फीमेल्स के पास चूँकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसका एक पार्ट एक एक्स पे होगा, दूसरा पार्ट उसका एलील उसका होगा दूसरे एक्स के ऊपर, तो वो हेमीजाइगस नहीं है, ठीक है। ओनली द मेल्स आर हेमीजाइगस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। यू आर एबल टू understand the mechanism of sex linkage in humans. So dear students, take care of yourself. Allah Hafiz.